Hello everyone. So in today's session, we will continue with the focal chord, and we'll have few properties of the parabola, and also we'll also try to find out the length of the focal chord, right? So all these things we'll cover in today's class. So let us begin with the session, and we'll start with the focal chord itself. So length of the focal chord का meaning, हमारे पास कोई focal chord रहेगा, any chord passing through the focus, ठीक है, उसको बना लेते हैं हम. तो ये जो हमारे पास, let us say कि ये वाला जो है कॉर्ड, ये फोकल कॉर्ड हो गया. इनको मार्क कर लेते हैं. लेट अस से दिस इज P एंड दिस इज Q. सिंस दिस इज पासिंग थ्रू द फोकस, सो दिस इज फोकल कॉर्ड. और हम जो यूज कर रहे हैं यहाँ पे, वी आर यूजिंग द कर्व y स्क्वायर इक्वल टू 4ax ओनली, स्टैंडर्ड कर्व. यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं y स्क्वायर इक्वल्स 4ax. दिस इज द वर्टेक्स, सो वी हैव सीन ऑल दिस थिंग्स इन द लास्ट क्लास. दिस इज द डायरेक्ट्रिक्स. So basically what we have to find out is length of the focal chord. So we have to find out PQ. So obviously we do not know what are the points PQ point क्या है, P क्या है, Q क्या है. तो हमने पैरामेट्रिक भी कवर की थी लास्ट क्लास में. So we'll try to do it in general कि कोई भी focal chord हो, and if you know the endpoints in the terms of the parameter, then what should be the length. अब यहाँ पे P को हम मान लेते हैं. So the parametric corresponding to y square equal to 4x, ये थी यहाँ पे, this was 8t स्क्वायर कॉमा 280. क्योंकि हमको पता है कि दिस इज द फोकल कॉर्ड, अदर एंड पे जो पैरामीटर t रहा होगा, उन दोनों में हमने लास्ट में रिलेशन दिखा था लास्ट क्लास में, दैट वाज t1 t2 इक्वल्स -1. अब अगर ये t मान लिया है तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो t2 बना है वो क्या बन जाएगा, -1/t. तो हम लिख सकते हैं कि बिकॉज t2 इक्वल्स -1/t1, अगर ये ठीक है, t1 मान लोगे, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा a by t स्क्वायर डिवाइड बाय a by t स्क्वायर कॉमा -2a/t. तो अगर आपको एक पॉइंट P पता है तो यू नो द अदर एंड ऑफ द फोकल कॉर्ड. तो बेसिकली देखो, यहाँ पे आपके पास एक तो तरीका ये है कि यू कैन फाइंड आउट इजीली कि क्या फोकल कॉर्ड है, और हाउ वी कैन actually find out the distance. So either we can apply the distance formula, right? This is one method. We can apply the distance formula because we know the point P and we know the point Q, right? अगर डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो चीजें, कैलकुलेशंस थोड़ा सा लेंथी ही बनेंगी यहाँ पे, ठीक है. ट्राई टू थिंक आउट सम अदर वे विद द डेफिनेशन ऑफ द पैराबोला, ठीक है, कि कैलकुलेशंस को हम कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं इसमें, ठीक है. देखो जरा क्या कर सकते हैं इसके अंदर. सो बिकॉज वी नो द डेफिनेशन, तो यहाँ पे हम लोग ने डेफिनेशन के हिसाब से let us draw perpendicular on the directrix from the point Q and from the point P. तो जो ये पॉइंट्स होंगे, एक मान लो ये PM हो गया, ये PN हो गया. According to the definition of the parabola, distance from the directrix is same as its distance from the focus. तो यहाँ पे ये जो PQ है, we can write this as PS plus SQ, and PS is equal to PM, SQ is equal to NQ. PM, this PM will be 80 स्क्वायर, तो ये डिस्टेंस हो गया, और ये डिस्टेंस A रहेगा. सो A प्लस 80 स्क्वायर, और ये यहाँ से यहाँ डिस्टेंस A है, यहाँ से A/t स्क्वायर, A प्लस A/t स्क्वायर. कैन टेक A कॉमन फ्रॉम द एंटायर एक्सप्रेशन. सो t स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर, A प्लस A is 2a, so 2 will be left. So finally we are having A into t plus 1/t square. This is the length of the focal chord with the parameter of any one point P as t. Now there is another point which we should see कि यहाँ पे apart from this we can represent length in other terms as well, ठीक है. तो यहाँ पे ये चीज करने की कोशिश करना. So I am just telling you the result कि हमारे पास अगर कोई भी focal chord है, right? If there is any focal chord and it makes
angle theta with the axis of parabola, not the x axis. इत्तेफाक से यहाँ पे x axis ही axis है parabola की, y square equal to 4ax में. लेकिन the important point to notice is theta is the angle made by the focal chord with the axis of parabola. ठीक है, जरूरी नहीं हर केस में x axis ही axis रहे. तो axis के साथ, axis of parabola के साथ theta angle बनाया है. So this distance or this PQ is also nothing but, we can write this as 4a cos x square theta. तो हम दोनों ही टर्म्स में इसको लिख सकते हैं, या तो t के टर्म्स में या थीटा के टर्म्स में, डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट, जहां पे जिस तरह की क्वेश्चन में जरूरत पड़ेगी हमको. तो अब आते हैं स्लोप ऑफ कॉर्ड पे. एंड स्लोप ऑफ कॉर्ड इज नॉट अबाउट द फोकल कॉर्ड. फोकल कॉर्ड हुआ तो उसके लिए भी हो जाएगा. तो दिस इज इन जनरल कि अगर आपके पास कोई भी कॉर्ड है पैराबोला में और उसके हम एंड पॉइंट्स मान लेते हैं कि लेट अस अज्यूम कि जो एंड पॉइंट्स हैं, एंड पॉइंट्स आर पी, उसके करस्पॉन्डिंग जो पैरामीटर है वो है t1, एंड देयर इज अनदर पॉइंट, वो हो जाएगा यहाँ पे q, और उसके करस्पॉन्डिंग पैरामीटर जो है वो है t2. अब स्लोप ऑफ द कॉर्ड का मतलब क्या हो जाएगा, हमको पता है कि p पॉइंट क्या होगा, पैरामीटर t1 है तो a_t1 स्क्वायर, 2a_t1, इस तरह से. सो सिमिलरली वी हैव फॉर a_t2 स्क्वायर एंड 2a_t2. स्लोप ऑफ द कॉर्ड विल बी a slope of pq, slope of pq will be y2 minus y1 2a_t2 minus 2a_t1 a_t2 स्क्वायर माइनस a_t1 स्क्वायर. अब ये आ जाएगा हमारे पास स्लोप. इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे अगर, तो a और ये सारी कहानी खत्म. तो हमारे पास यहाँ बच जाएगा 2 times t2 minus t1 डिवाइड बाई t2 स्क्वायर माइनस t1 स्क्वायर. तो यहाँ पे हम वी कैन अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. तो अगेन हमारे पास t2 माइनस t1 इंटू t2 प्लस t1. अब क्योंकि दोनों पॉइंट्स अलग अलग हैं, डिस्टिंक्ट हैं, तो t1 एंड t2 आर नॉट सेम, तो t2 माइनस t1 कैन नॉट बी जीरो. हम यहाँ पे लिख सकते हैं स्लोप ऑफ एनी कॉर्ड with endpoints as parameter t1 t2 is given by 2 times 2 upon t1 plus t2. अब ये चीज नहीं भी पता हो तो ऐसा नहीं कि आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, लेकिन चीजें हैं, कैलकुलेशंस काफी सिंपल हो जाएंगी, है ना. जैसे एक क्वेश्चन अभी हम देखते हैं कि जो जेई में ही पूछा जा चुका है ना, और इसको हम डायरेक्टली कैसे अप्लाई कर सकते हैं. तो लेट अस ट्राई टू सी द क्वेश्चन. सो द क्वेश्चन सेज दैट let A and B be two distinct points on the parabola y square equal to 4x. If the axis of the parabola touches a circle of radius r having AB as its diameter, so AB is the diameter and A and B both points are lying on the parabola, then the slope of the line joining A and B is what? So we have to find out the slope in terms of the radius of the circle. तो फिगर कुछ इस तरह की हो जाएगी. ये जो होगा ए बी हो जाएगा डायमीटर, और ये इसको यहाँ टच कर रहा है. तो यहाँ पे जो पॉइंट होगा, हमें बेसिकली स्लोप चाहिए. ठीक है, मान लेते हैं बी जो है इसके कॉरस्पॉन्डिंग पैरामीटर है t2, ए जो है इसके कॉरस्पॉन्डिंग पैरामीटर है t1. तो बेसिकली हमको स्लोप चाहिए ए बी का. सो स्लोप ऑफ ए बी अभी देखो पढ़ा है हमने, तो डायरेक्टली यहाँ से लिख सकते हैं विदाउट वेस्टिंग मच टाइम कि 2/t1 + t2. तो ये स्लोप ऑफ ए बी हो गया. अब इसको हमें आर के टर्म्स में निकालना है. यहाँ पे अगर स्लोप ऑफ ए बी हो चुका है तो सबसे पहली चीज तो ये है कि ये जो डिस्टेंस होगा यहाँ से यहाँ तक का, ये होगा r. ठीक है, दैट इज द y कोऑर्डिनेट, क्योंकि यहाँ से यहाँ जाएगा ये, तो ये y कोऑर्डिनेट क्या रहेगा r. और y कोऑर्डिनेट होगा क्या, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बेसिकली ए बी का मिड पॉइंट ही सेंटर होता है. तो y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, y1 + y2/2. ठीक है, तो ये जो पॉइंट रहेगा इसका y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए दैट विल मिड पॉइंट ऑफ ए बी.
तो वो हो जाएगा हमारे पास y1 प्लस y2 बाई 2। तो y1 क्या है, t1 के कॉरेस्पॉन्डिंग 2a t1, y2 है हमारे पास 2a t2, दिस डिवाइड बाई 2, दिस इज दी y कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर। ठीक है, अब यहाँ पे x कोऑर्डिनेट आएगा, यहाँ पे y कोऑर्डिनेट आएगा। अब y कोऑर्डिनेट किसके बराबर होना चाहिए, यहाँ पे r के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ से हमारे पास 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। a जो देखो क्या है, 2a t1 की बात हो रही है, 4x है, a कितना हो गया 1, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं 2 से 2 खत्म एंड a इज इक्वल टू 1, सो t1 प्लस t2 इज इक्वल टू r। सो नाउ दिस बिकम्स 2 बाई r। ठीक है, t1 t2 की यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, तो इसके अकॉर्डिंगली आंसर क्या हो जाएगा, आंसर शुड बी सी। लेकिन एक चीज आपको जो ऑब्जर्व करनी है वो ये ऑब्जर्व करनी है कि सेम सर्कल नीचे भी बन सकता था। y कोऑर्डिनेट जो होगा ये प्लस r की जगह माइनस r भी हो सकता था, डिपेंडिंग अपॉन वो ऊपर जा रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में है या फोर्थ क्वाड्रेंट में है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंगली t1 प्लस t2 इक्वल टू माइनस r होता अगर ये सर्कल नीचे बनेगा तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि जो रिक्वायर्ड स्लोप होगा MAB विल बी इक्वल टू प्लस माइनस 2 बाई r। तो मतलब डी वाला ऑप्शन भी करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, and this question has already been asked in IIT JEE, so and this was a multi correct question, more than one can be correct. In the next question we have a circle, or we can say let us try to directly prove that a circle with a focal chord as diameter touches the डायरेक्ट्रिक्स, वो डायरेक्ट्रिक्स को टच करेगा। लास्ट वाली क्लास में देखा था कि अगर हम फोकल डिस्टेंस डायमीटर लेते हुए करते हैं तो टेंजेंट है वर्टेक्स को टच करता है। ठीक है, उसी तरह से इसको प्रूव करेंगे हम। तो यहाँ पे हमारे पास एक तो फोकल कॉर्ड की बात हो रही है, तो फोकल कॉर्ड में हम मान लेते हैं जो एंड पॉइंट्स हैं, तो जो फोकल कॉर्ड है वो ए बी है, ए और बी फोकल कॉर्ड ए बी है, और ए को हमने मान लिया विद पैरामीटर टी, तो ऑब्वियसली जो बी होगा क्योंकि t1 t2 -1 होता है, -1/t हो गया। ठीक है, अब इसका मतलब बेसिकली क्या हुआ कि जो पॉइंट्स होंगे वो जाएगा AT स्क्वायर कॉमा 2AT, और ये पॉइंट हो जाएगा a/t स्क्वायर कॉमा -2a/t। तो ये पॉइंट्स हो गए। अब यहाँ पे हमको एंड पॉइंट्स मिल गए डायमीटर के, तो वी कैन फाइंड आउट इक्वेशन ऑफ द सर्कल विद डायमेट्रिक फॉर्म। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या आ जाएगी, x माइनस x1, तो x माइनस AT स्क्वायर, x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2, दिस इक्वल्स 0। तो यहाँ पे हमको इक्वेशन ऑफ सर्कल मिल गई है यूजिंग द डायमेट्रिक फॉर्म। अब अगर ये टच कर रहा है तो बेसिकली टेंजेंट जो है वो यहाँ पे डायरेक्ट्रिक्स है, ऐसा हमको देखना है। तो अगर टेंजेंट डायरेक्ट्रिक्स होगी, इसका मतलब सिंपल सा होगा डायरेक्ट्रिक्स का और इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सिर्फ एक ही आना चाहिए, तभी टच कर पाएगा, अदरवाइज नहीं कर पाएगा, जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में भी करा है। तो उसमें यहाँ पे हमको पता है कि देखो फोकल कॉर्ड है, डायमीटर है, तो यहाँ पे सबसे पहले तो ये लिख लेते हैं y स्क्वायर इक्वल टू 4x हमारे पास पैराबोला है। तो y स्क्वायर इक्वल टू 4x में हमको पता है डायरेक्ट्रिक्स x प्लस a equals 0, this is the directrix, so which is nothing but x equal to minus a। तो यहाँ पे अगर हम x equal to minus a सब्स्टिट्यूट करें तो हमको ऐसा मिलना चाहिए कि जो y की वैल्यू आएगी वो एक ही आनी चाहिए। तो इसका मतलब क्या हो गया, एक ही पॉइंट आया, और एक पॉइंट का मतलब क्या है, टच करेगी लाइन। दो पॉइंट आएंगे तो इंटरसेक्ट करेगी। तो यहाँ पे x इक्वल टू माइनस ए सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो ये हमारे पास आ गया
माइनस ए माइनस ए टी स्क्वायर माइनस ए, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस ए बाई टी स्क्वायर, और हमारे पास यहाँ पे आ गया है प्लस वाई स्क्वायर, और ये आगे इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो यहाँ पे 2a तो यहाँ पे सबसे पहले बन जाएगा माइनस 4a स्क्वायर, टी से टी खत्म हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास आएगा प्लस वाई टाइम्स 2a बाई टी माइनस ट्वाइस ऑफ ए टी इक्वल टू 0, ठीक है। अब सबसे पहली चीज़ कि यहाँ पे अगर y जो है एक ही वैल्यू आनी चाहिए, तो या तो d को इक्वल टू 0 होना पड़ेगा, या फिर आप ये दिखा दो कि दैट दिस इज परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। तो अब उसको कैलकुलेट करते हैं थोड़ा सा। अब यहाँ पे a इंटू दिस, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारे पास बन गया है कि पहले हम कुछ चीज़ें कॉमन ले लेते हैं यहाँ से। अगर a कॉमन ले लेंगे तो a स्क्वायर कॉमन आएगा, टी स्क्वायर प्लस 1 बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और डिवाइड बाई टी स्क्वायर है तो आप टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा कि दिस इज a माइनस माइनस है तो माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, ए स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया और बाई टी स्क्वायर आ गया, तो दिस बिकम्स 1 प्लस टी स्क्वायर, और ये भी क्या बन जाएगा जब एक कॉमन ले लेता है टी स्क्वायर प्लस 1, तो इसका होल स्क्वायर बन गया, प्लस वाई स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पे हमने टी स्क्वायर कॉमन लिया, यहाँ पे टी जो है यहाँ पे भी ए कॉमन ले लेंगे, प्लस ए वाई बाई टी इंटू, तो यहाँ ए क्या हम 2a वाई ले सकते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास आएगा 2a बाई टी कॉमन आ गया है, माइनस ए 1 माइनस यहाँ आ जाएगा टी स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये जो सारा टर्म है उसको हम कांस्टेंट की तरह लिख लेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 2a बाई टी 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू वाई, और अब ये सारे टर्म्स हम एक साथ लिख सकते हैं, प्लस ए स्क्वायर बाई टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है। अब हम चेक करेंगे कि यहाँ पे d 0 है या नहीं है, ये परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है या नहीं बन रहा है। यहाँ पे ये जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, इस एक्सप्रेशन को हम सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या इसमें काम कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर, और इसको मतलब ये वाला जो पोर्शन है इसको एज इट इज रहने देते हैं अभी के लिए, लेट अस ट्राई टू कीप दिस पोर्शन एज इट इज, और जो बचा हुआ पोर्शन है ये पोर्शन, इसको हम सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ देखो ए स्क्वायर तो सब दोनों में ही कॉमन है, हम ए स्क्वायर हमने बाहर निकाल लिया। अब ये टी स्क्वायर जो है इसके अंदर जाके बन सकता है क्या, 1 बाई टी प्लस टी, ठीक है, होल स्क्वायर है ये, 1 बाई टी प्लस टी होल स्क्वायर, यहाँ पे -4। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा ए स्क्वायर, अब यहाँ पे -4 है तो बहुत ही आसानी से हम लिख सकते हैं इसको 1 बाई टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर 2ab, 2 से टी कैंसिल हो जाएगा, प्लस 2 बचेगा -4, तो यहाँ जाएगा 1 बाई टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर -2, सो दैट इज अगेन ए स्क्वायर इंटू 1 बाई टी माइनस टी होल स्क्वायर। अब इसको थोड़ा सा और अच्छी तरह से लिखना चाहोगे तो टी, इसको आप एलसीएम ले सकते हो, ए स्क्वायर बाई टी स्क्वायर 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये जो एक्सप्रेशन है, जो कांस्टेंट टर्म है हमारे पास, दैट इज दिस विच इज होल स्क्वायर ऑफ दिस क्वांटिटी। तो मतलब क्या हुआ, ये जो अगर आपका जो रूट आया है, आप इसका जो रूट है क्लियरली दिखाई दे रहा है, ए बाई टी इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर आ रहा है। क्यों? क्योंकि उसी का सम यहाँ पे नजर आ रहा है आपको, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे डायरेक्टली आप देखो, अगर ऐसा बोलूं y इक्वल्स ए बाई टी 1 माइनस टी होल स्क्वायर, तो बेसिकली क्या बन रहा है, वाई स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये ऐसा ही बन रहा है, ठीक है। तो मतलब अगर हम इसको ऐसा लिख लें डायरेक्टली, चलो इसको ऐसा भी ना लिख के हम ऐसा लिख सकते हैं
कि दिस एक्सप्रेशन हैज नाउ बिकम y स्क्वायर प्लस 2a by t 1 minus t square into y plus a square by t square 1 minus t square whole square equals 0. So this is a square plus b square plus twice of ab equals 0. ठीक है, तो वो क्या होता है, परफेक्ट स्क्वायर बनता है. परफेक्ट स्क्वायर का मीनिंग क्या हुआ, आपको इक्वल रूट ही मिलेंगे. जैसे मान लो आपके पास आया x plus 2 होल स्क्वायर इक्वल टू 0, सो इट सिंपली इम्प्लाइज दैट x क्या हो जाएगा, -2 ही होगा. तो -2 -2 दो रिपीटेड रूट्स आएंगे, डिस्टिंक्ट तो नहीं हुआ ना, सेम ही रूट आया. तो बेसिकली यहाँ से हमने ये प्रूव कर दिया कि y की सिर्फ एक ही वैल्यू आएगी. ठीक है, अगर y की एक ही वैल्यू आ रही है, x तो था ही वहाँ पे, ये रहा x इक्वल टू -a है ही, और y की भी एक ही वैल्यू आ रही है, तो सिर्फ क्या करेगी लाइन, टच करेगी इसको. इट विल टच दी और इट विल टच दी सर्कल विद फोकल कॉर्ड एज द डायमीटर. ठीक है, अब इसके साथ एक और चीज है, ये बहुत ही बेसिक मेथड है ना. अभी हमने बहुत सारी चीजें आगे नहीं पढ़ी है, इसलिए थोड़ा सा लेंदी लग रहा है. अब आगे थोड़ी सी हम प्रॉपर्टीज और पढ़ लेंगे अब, क्योंकि ये मेथड भी हमको पता होना चाहिए कि बेसिक चीजें पता होनी चाहिए. आगे हम कुछ प्रॉपर्टी के थ्रू बहुत ही आसानी से इसको प्रूव कर लेंगे 2 लाइन के अंदर ही. ठीक है, अभी के लिए ये बेसिक मेथड इंपॉर्टेंट है हमारे लिए.